YouTube channel by the Gnan Manjari Modern School. Another time I welcome you in the period of SS Standard 3rd, Lesson 5, Some Other Cities, Thiruvananthapuram and Lucknow. Thiruvananthapuram and Lucknow. In the previous class, we already completed Lesson 4 and all the exercises of the Lesson 4. The heading suggested some other cities. We already learned some cities. क्या हमने सीखा था? दिल्ली लेसन 2, फिर मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई लेसन 3, Bangalore, Hyderabad in lesson 4, and in lesson 5 some other cities, Thiruvananthapuram and Lucknow. Now we start the lesson. First yellow box. Have you heard about the cities of Thiruvananthapuram and Lucknow? These cities are the capital of 2 states. Name them. Lesson पूरा पढ़ेंगे करेंगे तब हमको पता चल जाएगा. But now this time I just give you answer for your knowledge. Thiruvananthapuram is the capital of Kerala. Thiruvananthapuram is the capital of Kerala and the Lucknow is the capital of Uttar Pradesh. पहले in this period we discuss the Thiruvananthapuram. Thiruvananthapuram in this city, the topic are location, place to see, all that. First box of the Thiruvananthapuram called the evergreen city of India by Mahatma Gandhi. Thiruvananthapuram is the capital of Kerala, God's own country as the Kerala tourism department calls it. तिरुवनंतपुरम को महात्मा गांधी जी ने एवरग्रीन सिटी कहा है, हमेशा ग्रीन रहने वाला सिटी कहा है. और तिरुवनंतपुरम है वो केरला का कैपिटल है. इसको भगवान का देश यानी कि गॉड्स ऑन कंट्री, भगवान का रहने का देश ऐसा बोला जाता है. ऐसा जो केरला का टूरिज्म डिपार्टमेंट है, टूरिज्म की वहाँ जो घूमने जाते हैं उसको टूरिज्म बोलते हैं. तो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उनको केरला को क्या बोलते हैं? गॉड्स ऑन कंट्री. दिस इज द फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री अबाउट द केरला एंड वी नाउ ऑल नो द तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ द केरला. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द स्टोरी ऑफ केरला and after that you know that how Thiruvananthapuram become the capital of the Kerala. According to the legend, Parsuram threw his axe into the sea and the sea formed and forth and the land Kerala emerged out of it from wherever it came. Kerala is lush green country with showing palms, forests and much more. Thiruvananthapuram is the capital of Kerala. This is the history about the Kerala. According to the legend, पहले के महानुभावों के हिसाब से परशुराम जो कि बहुत बड़े संत थे, सागा थे, थ्रू हिज एक्स, उन्होंने अपनी कुहाड़ी जमीन में डाली, वहां से पूरा बबल्स निकलने लगे. तो फॉर्म्ड एंड फोर्थ हुआ, तो उसमें से केरला बना, इमर्ज आउट ऑफ इट, वहां से केरला बना है, ऐसी मान्यता है. उन्होंने सी में, दरिया में समुद्र में अपनी कुल्हाड़ी डाली, तो उसमें से केरला बना, वहां से थोड़ी जमीन बनी, तो उससे केरला बना है. फ्रॉम वेयर इट केम. Kerala is lush green country with showing palms, forests and much more. केरला बहुत गाढ़ ग्रीन स्टेट है, उसमें पाम्स यानी वो एक ट्री का प्रकार है, फॉरेस्ट है और कई सारे प्लांट्स है, ट्रीज है. एंड द तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ
Kerala. Now you all know which is the capital of the Kerala. Sorry, which is the capital of Kerala? And the answer is Thiruvananthapuram is the capital of Kerala. Again, I read this paragraph. It's called Evergreen City of India by the Mahatma Gandhi. Thiruvananthapuram is the capital of Kerala, God's own country, as the Kerala Tourism Department call it. According to the legend, legend ने जो कहा है उसके हिसाब से परशुराम ने समुद्र में अपनी कुल्हाड़ी डाली, वहां से जितनी जमीन निकली उसमें से केरला बना है. From where it come, Kerala is lush green country with sowing palms, forests and much more. And Thiruvananthapuram is the capital of Kerala. The point of this topic is Evergreen City of India. Capital of Kerala. आपको इस टॉपिक में ये बताया गया है कि केरला कैसे बना, केरला स्टेट कैसे फाउंड हुआ, कैसे बनाया परशुराम की स्टोरी के द्वारा, और फिर तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला. जब केरला बना तो तिरुवनंतपुरम उसकी राजधानी, स्टेट राजधानी बना. Next paragraph. The name Thiruvananthapuram means the abode of scared god Anantha, the snake on which Vishnu reclines. The Padmanabh Swami temple where Vishnu saw himself reclining on the Anantha is the landmark of the city. The walls of the temple have murals and stone carvings. The name तिरुवनंतपुरम मीन्स, उनका मीनिंग क्या होता है तिरुवनंतपुरम का? वो घर है किसका? गॉड अनंता का. गॉड अनंता कौन है? वो एक स्नैक है. अगर आपने विष्णु भगवान को और कई धार्मिक सीरियलों में या टीवी चैनल्स पे देखा हो तो आपको पता है होगा शायद कि विष्णु भगवान है वो स्नैक पे सोए रहते हैं. तो रिक्लाइन मीन्स इन द रिलैक्स पोजीशन. यहाँ आपको बाजू में जो इमेज दिखाई गई है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, वहाँ आपको विष्णु भगवान है वो अनंता यानी कि स्नैक पर सोए हुए मिलेंगे. इट इज द लैंडमार्क ऑफ द सिटी. और जो मंदिर की वॉल्स है वो म्यूरल्स यानी कि पेंटिंग्स एंड अदर आर्ट्स और स्टोन के कार्विंग से, स्टोन के सब कोतरनी से बनाई गई है. स्टोन के सब कोतरनी से बनाई गई है. चिल्ड्रन, इफ यू वांट टू राइट दिस पॉइंट्स इन योर नोटबुक तो प्लीज नोट डाउन इन योर 0 नंबर बुक. फर्स्ट टॉपिक इज तिरुवनंतपुरम, एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ केरला. If you want to note down, please children note down in your 0 number notebook. It is only for your knowledge. It is only for your knowledge. You can see the picture of Padmanabh Swami temple in your book. In your book, you can see the picture of Padmanabh Swami temple.
मीनिंग क्या होता है? तिरुवनंतपुरम मीन्स द abode of scared god Anantha, the snake. On which भगवान विष्णु जिस पर सोए हुए आराम कर रहे हैं, रिक्लाइंस इन द रिलैक्सिंग मोड में वो सोए हुए हैं, एंड पद्मनाभ Swami temple and Padmanabh Swami temple. In this paragraph, we learn the meaning of the Tiruvananthapuram. What is the meaning of Tiruvananthapuram? The means is the abode of the scare god Anantha. God Anantha क्या है? It is a snake on which Vishnu reclines, relaxing position पे जो विष्णु भगवान सोए हुए हैं. The Padmanabh Swami temple where the Vishnu shows himself reclining on the Anantha. इस पोजीशन में सोए हुए आपको वहां दर्शन करने को मिल सकते हैं. Is the landmark of the city. The walls of the temple have a murals and stone carving. Murals का मीनिंग होता है पेंटिंग्स एंड अदर आर्ट्स जिसमें वॉल्स पे किए गए हैं, और कार्विंग्स स्टोन कार्विंग्स यानी कि स्टोन से पूरा वॉल्स किए गए हैं. This is the meaning of the Tiruvananthapuram. Children, if you want to note down, please note down in your 0 number notebook. Now next topic, in these two paragraphs we learned that how the Kerala formed, and then the Tiruvananthapuram is the capital of Kerala, and what is the meaning of Tiruvananthapuram. What is the meaning of Tiruvananthapuram? Means the abode of the scared god Anantha. Anantha क्या है? The snake on which Vishnu reclines. Reclines का meaning क्या होता है? आराम से लेटे हुए होते हैं, उसको रिक्लाइंस बोलते हैं. और पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जिसमें आप पिक्चर ऐसे मूर्ति देख सकते हैं जिसमें विष्णु स्नैक पे सोए हुए हैं. तो एंड द पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इज द लैंडमार्क ऑफ द तिरुवनंतपुरम. इज द लैंडमार्क ऑफ द तिरुवनंतपुरम. नेक्स्ट टॉपिक इज लोकेशन. कहाँ है तिरुवनंतपुरम? कहाँ है? आपने मैप तो देखा ही होगा. यू कैन सी द मैप.
तो आप मैप में भी इसको देख सकते हैं। तो मैप में आप कैसे फाइंड करेंगे कि तिरुवनंतपुरम कहाँ है? तो यू कैन हैव टू लोकेट इट, लोकेशन कहाँ है वो देख के आप फाइंड कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई our next topic is location. Our next topic is location. Location is our next topic. The city lies on the, कहाँ है सिटी? वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट साइड के कोस्ट पे है, पेनिनसुला, सैंडविच बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में, सैंडविच का मतलब क्या होता है? बीच में है। इट इज ऑलमोस्ट एट द टिप ऑफ द मेनलैंड। मेनलैंड जो जमीन होती है उसके टिप पर ऊपर है। टू रिवर्स कर्मना एंड किली फ्लो थ्रू द सिटी। कौन सी नदी बहती है? कर्मना एंड किली फ्लो थ्रू द सिटी। पेनिनसुला का मतलब होता है वो पीस ऑफ लैंड जिसके आजू बाजू पानी ही है, सराउंडेड बाय द वाटर। पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय द वाटर। लोकेशन इज द सिटी लाइज ऑन द वेस्ट कोस्ट। कहाँ है? वेस्ट बाजू पे है, वेस्ट कोस्ट पे है, वेस्ट दरिया किनारे पे है। इंडियन पेनिनसुला सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में है। ऑलमोस्ट इट इज ऑलमोस्ट द टिप ऑफ मेनलैंड एंड टू रिवर्स कर्मना एंड किली फ्लो थ्रू द सिटी। कर्मना एंड किली जो नदियां हैं वो सिटी में है। द फॉरेस्ट हिल ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोवाइड तिरुवनंतपुरम विथ सम ब्यूटीफुल लोकेशन। बिकॉज वहाँ फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, इसीलिए वेस्टर्न घाट है वो तिरुवनंतपुरम में कई सारे ब्यूटीफुल लोकेशंस दिखाता है। यू कैन, इफ यू गो फॉर द trip of the Tiruvananthapuram, you can see the beautiful locations because Western Ghat provide Tiruvananthapuram some beautiful locations because forest hill वहाँ पे है। The city also has a long coastline with many beaches. सिटी के आजू बाजू में कोस्टलाइन यानी कि दरिया किनारा भी है और कई सारे बीचेस भी है, समुद्र तट भी है। Kovalam beach is an internationally famous beach that offer a bay with calm waters for bathing, place for sunbathing, herbal massage, catamaran cruising. वहाँ का जो बीच है, वहाँ हमने देखा कि कई सारे बीच है तिरुवनंतपुरम में। कोवलम बीच है वो इंटरनेशनली यानी कि जग भर में प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? वहाँ आप सन बाथिंग यानी कि सूर्य स्नान करने जा सकते हैं। हर्बल मसाज, वहाँ पे हर्बल मसाज पार्लर है। हर्बल मसाज पार्लर यानी कि औषधियों से जो मसाज करते हैं वो। और कैटमरन, वो कैटमरन क्या होता है? कैटमरन क्रूजिंग यानी कि ऐसी बोट जिसमें टू पार्ट्स होते हैं, टू बोट्स होती है, बीच में से ज्वाइंट की होती है, उसको एक बनाया गया होता है। A yacht or the other boat with twin pulls in the parallel. पैरेलल में फिर वो जाती है क्योंकि बीच में से दो बोट या दो यॉट को ज्वाइंट किया हुआ होता है। तो कोवलम बीच, प्लीज अंडरलाइन दिस, please underline this. Kovalam beach is an internationally famous beach that offers the bay with calm waters for bathing. किसके लिए वहाँ का पानी प्रख्यात है? सन बाथिंग, हर्बल मसाज एंड कैटमरन। तो कोवलम बीच है वो इंटरनेशनली फेमस है। लोकेशन में क्या आएगा?
lies on west coast sandwich between Western Ghat and Arabian Sea. Two rivers, Karmana and Kili. Beautiful locations and Kovalam beach and Kovalam beach is internationally famous for sunbathing, herbal massage and catamaran cruising. बोट में आपको सैर करवाते हैं अंदर, उसके लिए प्रख्यात है. If you want to note down, please note down in your 0 number book. It is only for your knowledge. Please children note down this. Our next topic is history. We learnt about the meaning of Tiruvananthapuram and the location of the Tiruvananthapuram. Now, what is the history? How Tiruvananthapuram became the Kerala's capital? What is the history of the city? We have to learn in this topic, and our next topic is history. What is the history of Tiruvananthapuram? How it has become the capital of the Kerala? Tiruvananthapuram is an ancient city and was trading center as earlier as 1000 BCE. It is believed that King Solomon of Israel used to come to Kerala to buy a sheep, sandalwood and ivory. तिरुवनंतपुरम बहुत पुराना सिटी है
ऐसा माना जाता था कि 1000 BC बिफोर क्राइस्ट, 1000 BC 1000 कई साल पहले किंग सोलोमन थे जो कि इज़राइल के थे। इज़राइल इज ऑल्सो ए वन कंट्री लाइक इंडिया। इज़राइल के थे, वो शिप में यानी कि पानी के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से केरला में आते थे। वहाँ से स्पाइसेस यानी कि मसाले, सैंडलवुड यानी कि चंदन एंड आइवरी परचेस करके जाते थे। आइवरी किसको बोलते हैं? हार्ड क्रीमी वाइट सब्सटेंस जो होता है, क्रीमी एक सब्सटेंस होता है फ्रॉम द एलिफेंट टीथ। एलिफेंट के जो बड़े बड़े दांत होते हैं उससे जो बनता है उसको आइवरी बोलते हैं। वो सब खरीदने के लिए किंग सोलोमन इज़राइल के जो थे वो केरला आते थे। लेटर इट बिकम द कैपिटल ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ ट्रावनकोर। जो प्रिंसली स्टेट किसको बोला जाता है? जो प्रिंस से रिलेट करता है। पहले राजा महाराजाओं का राज था, तो जो प्रिंस का होता है उसको प्रिंसली स्टेट बोलते हैं। फिर वो कैपिटल बना। फिर वो कौन सा कैपिटल बना? त्रावणकोर का कैपिटल बना। किसने बनाया था? फाउंडेड बाय मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा 1729 में मार्तंड वर्मा ने उसको कैपिटल बनाया था। द स्टेट वॉज नॉट डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश तब हमारे पर ब्रिटिश राज का राज था 1729 में। वी गॉट अवर फ्रीडम इन 1947। सो तब ये स्टेट, केरला स्टेट है, वो ब्रिटिश राज के नीचे नहीं आता था। महाराजा स्वाति थिरुनल एंड महाराजा अय्यलम थिरुनल वेर ग्रेट किंग्स। वहाँ के जो राजा थे उस टाइम के, महाराजा स्वाति थिरुनल एंड महाराजा अय्यलम थिरुनल वेर द ग्रेट किंग्स। उन्होंने सेवरल कॉलेज, हॉस्पिटल एंड लाइब्रेरीज वेर बिल्ट बाय देम। उन्होंने कई सारी कॉलेज, हॉस्पिटल और लाइब्रेरीज बनाई थी। स्वाति थिरुनल वॉज अ ग्रेट कंपोजर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। स्वाति थिरुनल है, वो उस टाइम के कंपोजर थे। कार्नेटिक म्यूजिक यानी कि क्लासिकल टाइप जो म्यूजिक रहता है, वहाँ के उस टाइम के कंपोजर थे। उस टाइम के राजा थे, वो अच्छे म्यूजिशियन भी थे। राजा रवि वर्मा वॉज पेंटर। राजा रवि वर्मा जो वहाँ के राजा थे वो पेंटर थे। त्रावणकोर एंड कोचीन स्टेट वेर यूनाइटेड। फिर त्रावणकोर और कोचीन को मिलाया गया 1947 में, जब हम आज़ाद हुए थे तब उनको मिलाया गया और केरला स्टेट बना। तब केरला स्टेट बना 1 नवंबर 1956 को। 1947 में आज़ाद हुए, फिर त्रावणकोर और कोचीन को मिलाया गया और बहुत बड़ा केरला स्टेट बना। एंड द तिरुवनंतपुरम इज बिकम द कैपिटल। एंड द कौन कैपिटल बना? तिरुवनंतपुरम बिकम द कैपिटल। फिर से करते हैं। तिरुवनंतपुरम इज अ एशियन सिटी। क्या है हिस्ट्री में? क्या है? इट्स अ एशियन सिटी Travancore and Cochin state united in 1947 and कौन सा स्टेट बना? केरला बना।
Thiruvananthapuram become the capital. Become the हिस्ट्री क्या है, एशियन सिटी है, उसकी हिस्ट्री बताई गई है, वहां के राजाओं के बारे में बताया गया है। फिर त्रावणकोर एंड कोचीन स्टेट को मिलाया गया 1947 में, फिर केरला स्टेट बना और तिरुवनंतपुरम उसकी राजधानी बना। इस तरह की तिरुवनंतपुरम की पूरी हिस्ट्री है। प्लीज चिल्ड्रन नोट डाउन इन योर नोटबुक, 0 नंबर बुक फॉर योर नॉलेज। हिस्ट्री एक बार फिर से लेते हैं। तिरुवनंतपुरम इज एन एशियन सिटी, बहुत पुराना है, एंड वॉज ट्रेडिंग सेंटर एज अर्लियर एज 1000 BCE। इट इज बिलीव दैट वहाँ की मान्यता है किंग सोलोमन ऑफ द इजराइल शिप यूज टू कम टू द केरला, केरला में आते थे बाय स्पाइसिस, बस मसाले खरीदने के लिए, चंदन और आइवरी खरीदने के लिए। आइवरी का मीनिंग मैंने समझाया, हार्ड क्रीमी वाइट सब्सटेंस of elephant teeth. Later it became the capital of princely state of Travancore, founded by Bharathan Verma in 1729. The state was not directly under the British rule. Maharaja Swati Thirunal and Maharaja Ayilayam Thirunal were great kings. वो बहुत बड़े राजा थे। Several colleges, hospital and libraries were built by them. उन्होंने कई लाइब्रेरी, कॉलेज और हॉस्पिटल बनाई है। स्वाति थिरुनल was a great composer of Carnatic music. राजा रवि वर्मा was painter. उस टाइम के राजा महाराजाओं के बारे में बताया गया है। फिर त्रावणकोर और कोचीन स्टेट को मिलाया गया, ज्वाइन किया गया 1947 में, उससे केरला बना 1 नवंबर 1956 को, एंड तिरुवनंतपुरम became the capital of Kerala. This is the history about the Tiruvananthapuram, how it has become the capital of the Kerala. Children, अब तक हम इतना ही रखेंगे. This is the homework time. We will meet in the next video. But पहले homework हो जाए, बाद में लेसन करेंगे बाकी का लेसन। 2-3 टॉपिक करके लेसन करेंगे। We completed lesson 4 in your 0 number book. 0 number book में होमवर्क में हमने lesson 4 कंप्लीट कर लिया है। फिर से again we repeated it. Write lesson 4 hard words one time in your 0 number book. Lesson 4 hard words. Again we continue the lesson 4 in a homework. Lesson 4 hard words one time in your 0 number book. Please children learn and write. This is a bye bye time. We will meet in the next video. Thank you. Have a nice day.